Hello dear students, welcome to your English class. In this video we will share the rules of subject verb agreement. कुछ rules हम last 2 videos में discuss कर चुके हैं और जो हमारे कुछ rules जो बचे हुए हैं वो rules अब हम इस video में share करेंगे. So let's continue. So now we are continuing with the next rule. So next rule is about the some nouns are preceded by. So first of all, I will write down the definition for you. After that, I will make you understand. Yes, some nouns are preceded by a lot of, a plenty of, a great deal of, a deal of, etc. Okay. Take singular verb. When they refer to amount of quantity, but they take a plural verb when they refer to number. Just you have to take care. अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और वो रेफर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी को, ये आपको टेक केयर करना है. इफ देयर इज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी को रेफर कर रहे हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. लेकिन अगर वो रेफर कर रहे हैं आपके नंबर को, नंबर मीन्स काउंटेबल एंड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल. सो यू हैव टू टेक केयर कि नंबर के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और क्वांटिटी के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक a lot of people dash the exhibition. So now we are having the verb visit. Now you have to fill the visit according to the rule because people refer to number. काउंट कर सकते हैं हम इसको. सो इट इज रेफरिंग टू नंबर. सो वी विल यूज अ प्लूरल वर्ब. सो बेस फॉर्म मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या होगा? विजिट होगा. तो एज इट इज इसमें हम फिल करेंगे विजिट. और अगर इसके अंदर आपका इस सेंटेंस में अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब फिल करते. लाइक टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल, अ प्लेंटी ऑफ वाटर, dash supplied to the villagers. Now you can see that here is water. Okay, so water is referring to quantity. So we will fill singular verb. So according to the question, we have to fill form of B. A plenty of water was supplied to the villagers. So this is according to the rule. If you are having some nouns which are preceded by a lot of, a plenty of, a great deal of, and they are referring to amount of quantity, so you have to use singular verb, and if they are referring to a number, you have to use plural verb. Many times we are having both. This is about our next rule.
both, many, some, few. These are plural. These are plural. Okay. If it is used as subject, then use plural verb. If in a sentence you are having both, many, some, few, they are referring to plural. So whenever we are going to fill the form of the verb, we have to use plural verb. Example, both of them dash good at studies. So we will fill the form of the be. So both is referring to plural. So we will fill both of them are good at studies. Okay, like many students dash there in the assembly. So many is also referring to plural. So we will again fill the many students were there in the assembly. So आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में both, many, some, few अगर है तो वो प्लूरल को रेफर करते हैं और आपने उसमें प्लूरल जो फॉर्म है उसको ही फिल करना है. Yes, now we are having our next rule, which is when a singular subject is joined with as well as in addition to except etc. with another noun or pronoun, we use singular verb. ओके. सो देखिए यहाँ पे कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो कनेक्टेड है किससे, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, और दूसरा जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है उसके अंदर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, विच इज आरव as well as his brother. So dash come. Here we are having has we have to fill, form of the has we have to fill. So Arav as well as his brother. So यहाँ पे जहाँ आपका ये as well as है उसके साथ आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ज्वाइन, तो उसके अंदर हम सिंगुलर को ही प्रायोरिटी देंगे. सो इसमें वी विल फिल हैज. आरव एज वेल एज हिज ब्रदर हैज कम. लाइक माय फादर in addition to our neighbor dash gone for a walk. So इसमें भी we are supposed to fill the form of has. So again we will use has. Okay, my father in addition to our neighbor has gone for a walk. ठीक है.
and everyone except Satish, everyone except Satish dash present. ओके, सो यहाँ पर बी की फॉर्म हमारी फिल होगी एवरीवन एक्सेप्ट सतीश वॉज प्रेजेंट। सिंगुलर को प्रायोरिटी हमें इस सेंटेंसेस में देनी है, सो वी विल फिल वॉज। सो आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो ज्वाइंड है आपके किससे, एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट, तो आपको उसमें सिंगुलर वर्ब को ही प्रायोरिटी देनी है। Yes, now we are going to discuss about our next rule, which is a singular verb is used with singular pronouns. Example, each, either, neither, anyone, even, two nouns, qualified by each or every, connected by and require a singular verb, बिकॉज जो हमने लास्ट रूल्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो सिंगुलर आपके पास अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद एंड, और आपने उसमें एक प्लूरल वर्ब को यूज करना है, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर वो कनेक्टेड है आपके ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो आपको वहां पर सिंगुलर ही यूज करना है। वहां ये मैटर नहीं करेगा कि आपके पास दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और वो कनेक्टेड है एंड के साथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल, लाइक ईच ऑफ द बॉयज dash given a prize। अब देखिए इसमें बी की फॉर्म हमने फिल करनी है। सो इसमें बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जिसमें वो ये देखते हैं दैट वी आर हैविंग बॉयज हियर, तो हमने यहाँ पे प्लूरल को फिल करना है। नो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी आपके सेंटेंस में ईच होगा तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिवन अ प्राइज, सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। नाउ everybody has helped her। सो यहाँ पे भी देखिए हमने हैज को ही यूज किया है, सिंगुलर को प्रायोरिटी दी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ये देखिए यहाँ पर बॉय एंड गर्ल है, अलग अलग है, रेंट से कनेक्टेड है, बट दे आर हैविंग एवरी है वहां पे साथ में। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। सो यहाँ पे बी की अगर मेरे को फॉर्म फिल करनी है तो मैं यहाँ ये नहीं देखूंगी कि यहाँ पे मेरे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, एंड से कनेक्टेड है तो हम प्लूरल यूज करेंगे। नो, बिकॉज वी आर हैविंग एवरी हियर। सो यहाँ पर आपको टेक केयर करना है कि यहाँ पर जो मेरा एवरी है वो किसको फॉलो करेगा, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। सो आई विल फिल हियर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स।
सो आपको टेक केयर करना है। जब भी आपके सेंटेंस में ईच, इधर, नीदर, एनीवन, ईच और एवरी है, कनेक्टेड है एंड से, कोई बात नहीं है, उसको आप इग्नोर करेंगे। आप उसमें सिंगुलर वर्ब को ही प्रायोरिटी देंगे। यस, आवर नेक्स्ट रूल इज व्हेन 2 or more subjects are connected by nor or, ठीक है। सो the verb is used according to the number of the noun nearest to it। ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और वो नोर या और से जुड़े होते हैं, और उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपका जो वर्ब फिल होगा वो उसके नजदीक में जो नाउन के साथ वाला जो होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से देखिए इसको कैसे। नीदर शी nor her sisters dash the temple। अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें we are supposed to fill form of visit। so neither she nor her sisters। so यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ she को नहीं देखना है, नो। हम इसके जो नियरेस्ट है, जो फिलअप्स के जो नियरेस्ट में है हमारे पास जो सब्जेक्ट है, उसी को हम यहाँ पर, उस नाउन को हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हर सिस्टर्स है, तो हर सिस्टर्स किसको शो कर रहा है यहाँ पे? प्लूरल को। तो प्लूरल की यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी होगी? आपकी विजिट, क्योंकि जो बेस फॉर्म होती है वो आपकी प्लूरल होती है। लाइक टेक एन अनदर एग्जाम्पल, इधर दे or he dash is telling a lie। सो यहाँ पर हमने बी की फॉर्म फिल करनी है। तो देखिए यहाँ हम दे को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ही को। इधर दे और ही इज, बी की फॉर्म कौन सी आ जाएगी हमारी? इज आ जाएगी। सिंगुलर है क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। ही इज टेलिंग अ लाई, ठीक है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, जो नियरेस्ट में आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्ब फिल करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, नीदर माई फ्रेंड नोर आई डैश टू ब्लेम। सो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू आई के अकॉर्डिंग हमने फिल करना है। सो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? आई में हम फिल कौन सा करते हैं? हेल्पिंग वर्ब एम। आई एम। नीदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। सो यहाँ पे आपको टेक केयर करना है कि अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं नोर या और से, तो जो आपके फिलअप के पास में जो नजदीक में आपका जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना वर्ब का फॉर्म जो है उसको वहां पर फिल करना है। यस बेटा, हमारा जो नेक्स्ट रूल है इट इज अबाउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग है। सो अब देखिए, कलेक्टिव नाउन का हमने एक लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। वो किस तरह से, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी। कलेक्टिव नाउन सच एज कलेक्टिव नाउन सच एज, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास एक्सेप्शन केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सो उसका भी हमने टेक केयर करना है। कलेक्टिव नाउन सच एज जूरी, committee, family, these all are collective noun. Takes a singular verb when it is considered as one unit, but when
they are regarded, but when they are regarded as individuals, they take a plural verb. बस आपने ये ध्यान रखना है, वो डिपेंड करता है कि अगर वो एज अ यूनिट, अगर वो एक को रेफर कर रहे हैं तो वो एज अ वन यूनिट उनको कंसिडर किया जाएगा, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. बट अगर उनको एज इंडिविजुअल्स यानी कि अलग अलग अगर हम उसको रेफर कर रहे हैं तो वहां पर वो प्लूरल वर्ब लेंगे. एग्जाम्पल, वो डिपेंड करता है कि वहां पर सर्कमस्टांसेस किस तरह के, वो डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस क्या है. लाइक द जूरी इज about to give its decision. एक सेंटेंस ये है हमारा. नेक्स्ट वन, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है हमारा सेंटेंस. देखिए इसके अंदर जो है द जूरी इज अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन, क्या है यहाँ पे सबने मिलकर के डिसीजन लिया है. लेकिन यहाँ पर देखिए कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, बिकॉज सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस हैं, इसीलिए अभी वो एज अ इंडिविजुअल उसको रेफर कर रहे हैं, हम अलग अलग कर रहे हैं तो प्लूरल का यूज कर रहे हैं. और अगर सबने मिलकर के एक ही डिसीजन लिया है तो वो किसका है, एज अ वन यूनिट वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं. एक एग्जाम्पल से मैं आपको और भी इसको समझाती हूँ. जैसे आपने दे दिया यहाँ पे, आवर फैमिली हैज डिसाइडेड, आवर फैमिली has decided to visit Shimla. ठीक है. सो यहाँ पर फैमिली को एक यूनिट की तरह यानी कंप्लीट जो फैमिली है वो जा रही है विजिट करने शिमला, वहां जाने का उन्होंने डिसाइड किया है. बट अगर हम ये कहते हैं द फैमिली नाउ लिव इन लंदन, तो यहाँ पर जो फैमिली है यहाँ पर उसको हम कैसे कर रहे हैं, एज अ प्लूरल. वहां पर उसको हम एज अ प्लूरल यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिव लिया है. ठीक है. सो यहाँ पर हमने बेस फॉर्म को यूज किया है जो कि किसको शो करता है, आपका प्लूरल को शो करता है. सो वो डिपेंड करता है बेटा कलेक्टिव नाउन में भी कि अगर उनको एक यूनिट की तरह कंसिडर किया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर उनको एज अ इंडिविजुअल्स आप रिगार्ड कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो वहां पर आपका प्लूरल वर्ब होगा. यस बेटा, एक हमारा और जो रूल है वो भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं हम उसे एज अ वन यूनिट ही कंसिडर करते हैं और इसीलिए वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं. वो कैसे है देखिए, देखते हैं हम. सम नाउन्स आर रिगार्डेड एज वन यूनिट and they take a singular verb. वो कैसे? एग्जाम्पल, bread and butter. अब देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर जो है मिलकर के क्या बना रहे हैं, एज अ कंप्लीट फूड. सो यहाँ पर हम उसे अलग अलग नहीं करेंगे. जैसे हमने किया था राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, नो, वो अलग अलग है. बट यहाँ ये दोनों मिलकर के, ब्रेड एंड बटर मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंप्लीट फूड बना रहे हैं, और इसलिए हम उसको एज वन यूनिट ही हम इसे रिगार्ड कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर फिलिंग इज. ठीक है. जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, वेट्स हमने यूज किया है, सिंगुलर वर्ब आपकी आई है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो बेस फॉर्म होता है वो आपका प्लूरल होता है, बट जब आप उसमें एस और ई एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है. सो ये भी देखिए, ये भी किसको रेफर कर रहे हैं, एक यूनिट को. जैसे आपने एक और सुना होगा, 2 and 2 makes 4. यस, 2 and
2 makes 4। तो इसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कंसिडरिंग एज अ यूनिट, तो यहाँ पे भी हम इसको सिंगुलर वर्ब जो है उसको फिल कर रहे हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक और होता है आपका लाइक द नॉवलिस्ट एंड पोइट इज डेड। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, इज डेड, कि अगर इसमें द नॉवलिस्ट एंड पोइट, ये क्या है, ये दोनों एक ही पर्सन है, नॉवलिस्ट भी वही है और वो पोइट भी है, इसलिए हमने यहाँ पर किसको फिल किया है, इसको फिल किया है। अगर हम द नॉवलिस्ट एंड द पोइट बोलते तो वो क्या हो जाता, वो आपका आर लेता, क्योंकि उसमें वो दो अलग अलग पर्सन है, नॉवलिस्ट अलग है, पोइट अलग है। सो इसीलिए हम यहाँ पे फिर क्या करते, फिर हम यहाँ पर क्या फिल करते, आर फिल करते, बिकॉज यहाँ पर ये किसको रेफर कर रहा होता है, ये रेफर करता है आपके प्लूरल को, क्योंकि वो अलग अलग इंडिविजुअल्स है। बट अगर वो एज अ वन यूनिट अगर उनको हम लोग समझ रहे हैं या एज अ वन यूनिट ही हम उसे रिगार्ड करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। यस बेटा, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे, विच इज अबाउट विश। आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जिसके अंदर क्या होता है, आई विश, आई विश, एज इफ में जब हम सपोज करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, एज दो, ठीक। इफ, कंडीशन क्या है हमारी, इफ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट देन with singular we use plural verb। सो देखिए, अगर आपके पास ये कंडीशन आती है और वो होता है कि जिनको आप फिल नहीं कर सकते उन विशेष को, तो उसमें आपने किसको यूज करना है, प्लूरल विल को, प्लूरल वर्ब को आप फिल करेंगे। एग्जाम्पल, I wish I were a king, I wish I were a king, ठीक है। सो हालांकि ये शो किसको कर रहे हैं, आपके सिंगुलर को कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखिए हमने प्लूरल वर्ब को किया है। तो अगर आपके पास आई विश, एज इफ, एज दो, इस तरह की कोई कंडीशंस होती हैं जिनको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमें उसके अंदर प्लूरल को फिल करना है। लाइक आपके कई बार क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर क्या हो, हैविंग, बून, ब्लेसिंग्स, ठीक है, ब्लेसिंग्स, प्रे और डिजायर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं किसी को, या ब्लेसिंग्स करते हैं किसी के लिए, प्रे करते हैं, ठीक है। सो उसमें हमेशा क्या होता है, विद सिंगुलर वर्ब, we use with singular we use plural verb। सो एग्जाम्पल से देखिए, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ये। लाइक बहुत बार आप यूज करते हैं, जैसे आपने बोला गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। सो देखिए यहाँ पे गॉड वैसे तो क्या है, सिंगुलर है, बट हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब को यूज कर रहे हैं। जो हमारा बेस फॉर्म है उसको यूज किया जा रहा है, यहाँ पे सेव्स नहीं आ रहा है। हालांकि गॉड क्या है, सिंगुलर है, बट गॉड सिंगुलर होने के बाद भी वी आर यूजिंग प्लूरल, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल लिया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए इसमें भी क्या है, ब्लेस फिल किया है, ब्लेसेस नहीं किया है हमने, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रोल सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर जो वर्ब की फॉर्म होती है उसको यूज करते हैं हम यहाँ पर, बट हमने यहाँ पर
एस और ई एस ऐड नहीं किया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रोल ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमारे जो सिंगुलर्स होते हैं वो किसको लेते हैं, प्लूरल वर्ब्स को लेते हैं. लाइक आप बहुत बार बोलते हैं लॉन्ग मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है. लाइक लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग. सो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा किसको प्रायोरिटी देते हैं, प्लूरल को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. हमने सारे रूल्स जो हैं इस वीडियो में कवर कर लिए हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के. सो कीप स्माइलिंग एंड कीप कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी. सो स्टे हेल्दी एंड सेफ. Have a nice day.